Module 6, Role of ICT in Early Childhood Education. In this module, we will discuss about the role of ICT in early childhood education. Previously, you have gone through some definitions of ICT. We have discussed some key concepts of ICT, the definition of early childhood education, how it is relevant to teachers, how it is relevant to students. So we have also gone through a developmentally appropriate framework that we can use, teachers can use to implement ICT in their classrooms. First of all, I would let you go through a very warm-up kind of exercise which you are going to do, and you are going to think about it, that before moving on to understand appropriately the role of ICT, we are going to see that whenever there is a role, there is a reason behind that role. तमाम रोल्स जो हम परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में भी, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है. एवरीथिंग इज़ with reason, it is not without reason. So if you are performing a role, if anything has a role in your life, it has a reason behind it. Hence there is purposefulness. हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसदियत है, और बग़ैर मकसद के कोई भी चीज़ इस कायनात में कारआमद नहीं है. कोई भी चीज़ अपना काम नहीं पूरा कर सकती without a purpose. So ICT also has a purpose that it has to serve. लिहाजा the role और the reasons हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. अब इन रोल्स और रीजंस को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, आगे जाके फर्दर इन द कोर्स यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेसिफिक रोल्स डू ICT प्ले इन द अर्ली चाइल्डहुड. यहाँ पर 4 R's के आपको एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आई हैव कंपाइल्ड अ 4 R फ्रेमवर्क दैट इज़ comprised of roles, reasons, relevance and requirement. Why it is relevant and why it is required. अब रेलिवेंस के ऊपर आते हैं. रेलिवेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि ICT के रेफरेंस से अगर बात करें तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है. वी डोंट हैव लेस इंफॉर्मेशन, वी हैव अ ओवरलोड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी मैनेज्ड. अब वो इंफॉर्मेशन रुकी हुई नहीं है, इट इज़ ग्रोइंग कॉन्टीन्यूसली with each passing day, every week, every month, every year, it is growing. So with that rate of growth, we have to do something about that information. अब उस information को समझने के लिए पहले आप ये बात समझें कि information एक isolated सा concept है. Information isolation में exist नहीं कर सकती without the presence of communication. जहाँ भी information होगी वहाँ पर communication होना लाजमी है, चाहे वो किसी भी तरह की हो. एवरीडे एग्जांपल ले लेते हैं. जब हम प्रेयर के लिए खड़े होते हैं, कोई भी आप मेडिटेशन करते हैं, यू आर गोइंग टू अ चर्च और अ मॉस्क और एनीवेयर, यू आर अटरिंग सम वर्ड्स, दैट इज़ इंफॉर्मेशन, बट यू अटैच मीनिंग टू दैट इंफॉर्मेशन जब आपको ये पता चलता है कि दिस इज़ बीइंग कम्युनिकेटेड, देयर इज़ सम अदर एंड दैट इज़ लिसनिंग टू योर communication, that is listening to your words, and hence that information becomes relevant to you. So that information is meaningful because it has a purpose and you know that that information is being communicated. Information communication technologies play a very important role in handling that information. एक और बात हमें जो समझने की ज़रूरत है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है. इट इज़ नॉट स्टैगनेंट, it is not still. While you are listening to this lecture, while I am speaking to you, the earth is moving about 460 meters per second, and it is moving on its orbit, it is moving on its axis, but you don't feel that speed because there is a very delicate balance that is put into place, and that is because of that purposefulness that we experience all of this. So in that dynamic world, how can you expect कि जो information हमारे पास है या जो exist कर रही है वो dynamic नहीं होगी या वो change नहीं हो रही होगी. लिहाजा उस information को something has to happen to that information. That information needs to be handled. जिस तरह कि हम यूँ कह सकते हैं कि something must be happening to and with that information. So information communication technologies come in here and they tell you what to do and do with that information in your classroom as a teacher, and how can you use it for the benefit of early childhood learners. In this case ICT किस तरह से स्टोर करती है, किस तरह से रिट्रीव और ऑप्टिमाइज़ करती है,
रिसोर्सेज को, इंफॉर्मेशन को एक बेटर तरीके से, ताकि हम उसको अर्ली लर्नर्स के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फिर उसके बाद आप मूव ऑन होते हैं कि आईसीटी रिक्वायर्ड क्यों है। ये भी उसके रोल से ही रेलिवेंट है। ये रिक्वायर्ड इसलिए है बिकॉज वी नीड आवर चिल्ड्रन टू नेविगेट सक्सेसफुली इन द वर्ल्ड, और इस इंफॉर्मेशन वाले वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर उनको इसको हैंडल करना आना चाहिए, उसको नेविगेट करना आना चाहिए। सेकेंडली, वी नीड टीचर्स हु आर प्रोफेशनली ट्रेंड फॉर आईसीटी। हमारे पास ऐसे टीचर्स की कमी है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेंड ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन पाकिस्तान हैव a manpower, have human resources which are lacking in the training of ICT. तो इस ट्रेनिंग को मूव ऑन करते हुए, इस ट्रेनिंग के साथ साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि necessarily this training has to come into effect into the 3 dimensions of the school environment. अब स्कूल इन्वायरमेंट की 3 जो डायमेंशंस हैं जिनमें आईसीटी का रोल है वो क्या है? पहली है फिज़िकल इन्वायरमेंट, दूसरी सोशल, और तीसरी टेम्पोरल। आईसीटी इन तीनों इन्वायरमेंट्स को, क्लासरूम के फिज़िकल, सोशल एंड टेम्पोरल, इन तीनों इन्वायरमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है। और फिज़िकल इन्वायरमेंट, यू माइट हैव गेस्ड कि वो क्या होगा। फिज़िकल इन्वायरमेंट से मुराद जो आपका क्लासरूम का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो फर्नीचर है, उसमें जो इक्विपमेंट है, ओवरऑल डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ योर ECE classroom. Then we move on to the social environment. What is the social environment? Social environment उस interaction पे based होगा जो टीचर और स्टूडेंट्स आपस में कर रहे हैं। जो बच्चे क्लासरूम में सुबह एंटर हो रहे हैं एंड दे आर कमिंग फॉर अ न्यू डे, फॉर अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर उनको ग्रीट कैसे कर रही है, ओवरऑल उनका डे कैसा, हाउ डू दे फील गोइंग अबाउट दैट डे इन द स्कूल। तो दिस इज़ द सोशल इन्वायरमेंट। हाउ डू द चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर स्टाफ ऑफ द स्कूल, ये सारा उनका social environment. Then we have the temporal environment. Temporal environment, you might now have an idea कि temporal means time. Time से related, schedule से related, कौन सा lesson कब होना है, कौन सा learning experience किस time पर schedule है, how are you going to arrange it in a way that it feels natural to the students. So you might have known as a teacher कि जिस तरह बच्चे सुबह के टाइम आते हैं and they are गोइंग थ्रू सम ऑफ द चैलेंजेस, कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ उन्होंने कर ली हैं, बाय द टाइम दे गेट हंग्री देयर शुड बी अ लंच ब्रेक। ऐसा ना हो कि आप लंच ब्रेक इतना लेट, टेम्पोरल इन्वायरमेंट को इस तरह से मैनेज करें कि वो उनकी लंच ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाए या बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाए, व्हेन दे आर नॉट इवन हंग्री एंड दे डोंट वांट टू ईट लंच। सो दिस इज़ ऑल द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। हमने बात की फ़िज़िकल की, हमने बात की सोशल की, और हमने बात की टेम्पोरल इन्वायरमेंट की। इसके अलावा अब हम कंक्लूड अगर करें इस सारी चीज़ों को, तो द रोल ऑफ आईसीटी सस्टेन्स इन ऑल ऑफ दीज 3 डायमेंशंस। यू कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ एनी वन डायमेंशन, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप किसी एक डायमेंशन में इसको इम्प्लीमेंट करें और बाकियों में ना करें। देन इट वुड बी नॉट बी दैट फंक्शनल, वी वुड नॉट गेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिजल्ट्स फ्रॉम दैट इम्प्लीमेंटेशन। ये एक फिगर है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए उसकी ओवरलैप शो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से ओवरलैप कर रही हैं रोल्स और रीजंस को, और रेलेवेंस और रिक्वायरमेंट का। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड, और हम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम सम अप करें तो पहली बात, रोल के रेफरेंस से हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आईसीटी इज़ अ पार्ट ऑफ ईसी, क्योंकि इट इज़ यूबिक्यूटस, मतलब कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। योर चिल्ड्रन आर ऑलरेडी एक्सपोज टू द आईसीटी। ऐसा नहीं है कि आपने आईसीटी को कहीं रोक लिया है उनकी ज़िंदगी से, या वो उससे कभी भी एक्सपोज नहीं होंगे, वो उससे एक्सपोजर उनको लाजमी होगा वन डे और द अदर। यू हैव टू प्रिपेयर दैम फॉर दैट ऑलरेडी एक्सपोज्ड आईसीटी, जिससे वो फेस करेंगे डे टू डे बेसिस के ऊपर। सेकेंडली, you have to use ICT for supporting and enhancing the ECE experience, और इस enhancement को कभी भी नहीं अचीव किया जा सकता अगर ICT को करिकुलम में इंटीग्रेट नहीं किया गया। अगर आपका करिकुलम ICT बेस्ड ही नहीं है, उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, so whatever you do in the classroom becomes irrelevant. First of all, you need a curriculum that is designed for that purpose. Fourth, we have to think that ICT का रोल एक ये भी है कि टू प्रोड्यूस मेटाकग्निशन इन द लर्नर। मेटाकग्निशन मीन्स
learning to learn. We want to produce lifelong learners who are independent in their learning. तो लिहाजा बच्चों को ये सिखाना कि उन्होंने सीखना कैसे है, that is a concept further. This is a step further that ICT is taking you. Fifth, we must use ICT not for the sake of ICT but as a tool. हमें ये बात याद रखनी है कि कई दफ़ा में होता है कि बच्चों को ये कहा जाता है कि आप ये लेसन करें, उसके बाद आपको इस तरह की गेम जो है वो प्ले करने के लिए मिलेगी, या we use it as a reinforcement tool. That should not be the case. ICT should be so well integrated into the lesson that it should be used as a equipment, as a tool, as a facilitation for the lesson. Then अब हम देखेंगे कि ICT का जो रोल है वो स्पेसिफिक की लर्निंग एरियाज़ में क्या है. मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड के कुछ की लर्निंग एरियाज़ हैं जो पाकिस्तान में अलग हैं, अब्रॉड में कुछ और हैं, बट सम हाउ दे आर सिमिलर. एक कंपैरिजन भी हो जाएगा और हम उसमें देखेंगे कि ICT उन ईच ऑफ द की लर्निंग एरियाज़ को कैसे इफ़ेक्ट कर सकती है, कैसे अच्छे तरीके से उनको अचीव कर सकती है.